সর্বপ্রথমে ঠাকুর, মা, স্বামীজি ও শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদ পদ্মে আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। আমাদের পাঠচক্রের পক্ষ থেকে এবং আমরা যারা যুক্ত হয়েছি এবং আরো যারা যুক্ত হব সবার পক্ষ থেকে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিমোক্ষানন্দজি মহারাজের শ্রীচরণে আমাদের শ্রদ্ধাবনত ভক্তিপূর্ণ স্বাগত প্রণাম জানাই। আমরা এখনই বলছিলাম পূজ্যপাদ মহারাজজি 2018 সালের 20শে ডিসেম্বর আমাদের পাঠচক্রে সন্ধ্যায় এসেছিলেন। সেই সন্ধ্যাটি আমাদের সবার মনেই আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তারপর এই করোনা আবহে মহারাজজিকে এরকম অনলাইনে আসার নিবেদন করে যখন যোগাযোগ করি, মহারাজ আবার একটি ইমেল করলেন, ছোট্ট ইমেল। সেই ইমেলটি পড়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। মহারাজ এমন করে আমাদেরকে মনে রেখেছেন, বিশেষ করে আমাদের ছোটদের। তারপর মহারাজজি আমাদের এখানে এসে ওই ছোটদের স্তোত্র, গীতা চ্যান্টিং এইগুলি শোনার পর আমাদের ছোটদের সাথে কথা বলেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন যে সরস্বতী বন্দনা ও মা সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্রটি তোমরা করো। পরের দিন থেকেই সেটি নিয়মিতভাবে ওই প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত সবাই যারা আসে তারা করে আসছে। তো আজকেও আমরা সরস্বতী বন্দনা ও মা সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করব। চিরাগ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतं शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। প্রণাম মহারাজ। নমস্কার। আর মহারাজ একটা গান হোক তাহলে। হ্যাঁ হোক। আপনি বলছেন। চিরাগ, নেটওয়ার্কটা একটু ঠিক করো, তোমার একটু নেটওয়ার্কের গন্ডগোল হচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক, কোনটা করবে? জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক। আচ্ছা ঠিক আছে জেঠু। জীবন পদ্মে
স্ফুরিত হোক রাম কৃষ্ণ শারদা নাম অরুণ কান্ত রূপ ধরা অশ্রু করু প্রাণ জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রাম কৃষ্ণ শারদা নাম অরুণ কান্ত রূপ ধরা অশ্রু সরুক প্রাণ জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রাম কৃষ্ণ শারদা নাম অরুণ কান্ত রূপ ধরা অশ্রু করুক প্রাণ আ ক্লান্ত কৃষির দূরের পন্থ তৃপ্ত পরবাসিস অন্ধকারের হৃদি হরণ দাও তোমার মোহন ঠাম ক্লান্ত তৃষিত দূরের পন্থ তৃপ্ত হোক হে করবাসিস অন্ধকারের হৃদি হরণ জাগাও তোমার মোহন ঠাম আ আ জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রাম কৃষ্ণ শারদা নাম অরুণ কান্ত রূপ ধরা অশ্রু সরস করুক প্রাণ আ আ মর্ত মাটিতে স্বর্গবাসুক তোমার কৃপায় যুগাবতার কুণ্ঠিত হেরি লুণ্ঠিত হিয়া দাও হে দুঃখ শোকে প্রাণ মর্ত মাটিতে স্বর্গবাসুক তোমার কৃপায় যুগাবতার কুণ্ঠিত হেরি লুণ্ঠিত হিয়া দাও হে দুঃখ শোকে প্রাণ আ আ জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রাম কৃষ্ণ শারদা নাম অরুণ কান্ত রূপ ধরা অশ্রু সরস করুক প্রাণ অশ্রু সরস করুক প্রাণ অশ্রু সরস করুক প্রাণ এবার আমরা ॐ अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। प्रिय भक्तजन और मेरे प्यारे बच्चों, आज करीब 3 साल के बाद सबसे मिलने के लिए एक अच्छी चांस मिली है हमको। तुम लोग को देखकर इतनी खुशी हो रही है। उस दिन मुझे याद आ रहा है जिस दिन मैं तुम लोगों के साथ कुछ टाइम बीता दिल्ली में। जब दिल्ली में मैं वीसा के लिए अपेक्षा कर रहा था, उस समय एक दिन अनिल साना आए थे आश्रम में, आकर मुझे मिले थे और अनिल बाबू कह रहे थे, महाराज आप जरूर आना चाहिए हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में, और आस में एक पाठचक्र है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद पाठचक्र। इसमें इतने बच्चे आते हैं और इतने लोग आते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है इतने लोगों को रखने के लिए। तो धीरे धीरे जो छोटा सा शुरू हुआ था पाठचक्र, अभी इतना बढ़ गया है और बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मैंने वहां बैठकर तो बच्चों से पूछा, क्या ट्रेनिंग मिला है तुम? तो बच्चों ने गीता का पाठ किया, इतना सुंदर स्पष्ट भाव से जो संस्कृत का जो गीता पाठ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों से कुछ बातचीत हुई और बच्चों से इतना प्यार दिए उस दिन। असल में अनजान आदमी सडनली एक जगह पर जाता है और वहाँ के लोग बैठकर एक साथ उसको इतना प्यार देता है, तो वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आजकल के दिन में। लेकिन वहाँ बच्चों का प्यार इतना मिला और अनिल बाबू और उनकी स्त्री दोनों ही इतने उत्सुक थे कि प्रोग्राम होने के बाद हमको खाना भी खिलाए, तो बहुत अच्छा खाना खिलाए थे। और तो मेरे साथ एक स्वामी जी भी थे, अभी भी सुना है उनका देहांत हो गया था पिछले साल में, लेकिन बहुत अच्छे स्वामी जी थे वो हमको ले गए थे वहाँ। तो आज तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज खुशी का दिन है, क्योंकि होली का दिन। होली का दिन में क्या होता है, होली का दिन में हम लोग रंग चढ़ाते हैं एक ऊपर एक, और होली एक विशेष दिन है। जैसा पूर्णिमा, दौड़ पूर्णिमा कहा जाता है ना, गतकाल पूर्णिमा था, तो उस पूर्णिमा में एक अवतार का सृष्टि हुआ। मतलब एक अवतार आए थे हमारे बीच में रहने के लिए। उनका नाम था गौरंग महाप्रभु, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। तो इनका असल नाम था विश्वम्बर, विश्व अंबर, ऐसा नाम दिए थे पिताजी और माताजी और जो बुजुर्ग लोग थे फैमिली में, वो लोग इस बच्चा को दिए थे विश्वम्बर। लेकिन वो विश्वम्बर नहीं रहा, क्योंकि इनका माताजी का जब प्रसव का टाइम आ गया था, तब इनको उठाकर, मतलब माताजी को उठाकर घर में अंदर ले जाने के भी समय नहीं था। और तब कहाँ प्रसव हुआ, तो घर का सामने एक नीम पेड़ था, तो नीम पेड़ का नीचे प्रसव हुआ था। जैसा बुद्ध भगवान का चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कपिलवस्तु में बुद्ध भगवान के जो पिताजी थे राजा थे और उनकी पत्नी रानी थी। तब रानी की जब डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो क्या हुआ, तो वो एक जगह पर जा रही थी, तो उस समय कोई जगह नहीं मिली, तो ये पेड़ के नीचे ही जन्म देना पड़ा। वैसा ही इनका भी ऐसा ही हुआ था, नीम पेड़ के नीचे जन्म लेने के कारण इनका दूसरा नाम पड़ा निमाई। तो लोग इनको प्यार से भी हो
या उनको थोड़ा सा मजाक करने के लिए हो तो उनका निमाई नाम रख दिया। अभी सब लोग निमाई निमाई करके ये लड़का को बुलाने लगे। लेकिन ये लड़का जब छोटा सा बच्चा था, जन्म हुआ था, उस समय तो वो जैसा हम लोग सोए रहते हैं इस तरह की बच्चा रहता है। तो 1 साल होने के बाद में तो उठता है, तो उसके बाद चलना सीखता है। तो इस तरह का पहला जो बच्चा चलता है वो एक बड़ी बात है घर में। आप सबको जानते हैं, सब लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि तुम लोग जब तुम लोग को याद नहीं रहेगा उस दिन का, लेकिन पेरेंट्स को तो जरूर याद रहेगा अपना बच्चा कब चलना शुरू किया है। ये चलना है ना, किसी को पकड़ के नहीं, दोनों हाथ छोड़ दिया जाएगा और पेरेंट्स लोग बैठकर देखेंगे तो कैसा ये बच्चा भी अपने से एडजस्ट करके चलता है। तो ऐसा देखते समय तो निमाई भी ऐसा चला एक दिन 1.5 साल में। तो जब चलने लगा है तो घर में जहां जहां उसका पैर पड़ा वहां एक आश्चर्य चीज हुआ। जहां जहां पैर पड़ा तो पैर का चिन्ह, उस माटी का घर था तो उसमें पड़ा है। तो उस चिन्ह को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित। क्यों? वो चिन्ह था, जहां जहां पैर पड़ा था, जो चिन्ह हुआ था, वहां उनका पैर का नीचे 5 प्रकार का चिन्ह है जो ऐसे दिखाई नहीं पड़ा। शुरू में किसी को दिखाई नहीं पड़ा। बच्चा को लेकर तो बहुत लोग आनंद लिए हैं, लेकिन वो पैर को भी देखे होंगे, लेकिन पैर के नीचे ये जो 5 चिन्ह जो विष्णु भगवान के पैर में होते हैं वो देखा नहीं, किसी का आंखों में नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन माटी पर उसका पैर पड़ा, उस दिन माटी पर वो चिन्ह मालूम हुआ। तब लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े पंडित थे। उनका जन्म हुआ नवद्वीप करके एक छोटा सा गांव में। आज नवद्वीप बहुत बड़ा शहर बन गया है, लेकिन उस समय बहुत छोटा सा गांव था। तो वहां जन्म हुआ था। वहां के बुजुर्ग लोग आए थे, वो लोग देखे थे क्या है इसमें। उसमें देखे शंख, चक्र, पद्म, इस तरह का जो एक झंडा, विष्णु का जो झंडा है वो भी है। तो ये सब देखकर उन्होंने कहा देखो ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा परवर्ती काल में बहुत बड़ा संत बनेगा, क्योंकि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। ऐसा लोगों ने उस समय कहा था। जैसा आप जानते हैं रामकृष्ण भगवान के जन्म के पहले क्या हुआ था। रामकृष्ण की माता जी पास में ही एक शिव मंदिर था, तो शिव मंदिर में जाकर वो पूजा करती है, रोज जाती है। लेकिन जब गर्भावस्था में जब बच्चा का पैदा होने का समय आ गया था, उसका पहला दिन क्या हुआ था, शिव मंदिर में जाकर बैठी है और पूजा करती है। पूजा करते करते देख रही है जो शिवलिंग है जिसकी पूजा कर रही है, उस शिवलिंग से एक ज्योति निकली और वो ज्योति पूरा छोटा सा ये जो घर है, जो मंदिर है, तो उस मंदिर पूरा समा गई और उनको भी पूरी कवर कर दी वो ज्योति। तब उनको मालूम हुआ अरे मुझे तो एक बच्चा होने वाला है, ऐसा मालूम हुआ था। तब जब उसके जो पति थे खुदीराम चट्टोपाध्याय, वो बाहर गए थे। वो कहाँ गए थे? गया गए थे। वहां से वो वापस आए थे। वापस आने के बाद उनको खबर दी, तो महिला ने खबर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे घर में भगवान आने वाला है। कैसे भगवान आने वाला है तुम बोलते हो? तब उन्होंने कहा देखो, जब तुम मंदिर में गई और पूजा कर रही थी, शिव जी का लिंग से एक ज्योति आई और तुम्हारे अंदर समा गई। और मैं जब उसी दिन जब गया में था, तो गया में जब भगवान विष्णु का क्षेत्र है और वहां जाकर पूजा की। पूजा करने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे आकर थोड़ा सा विश्राम कर रहा था। उस समय मेरे सामने भगवान विष्णु उपस्थित हो गए। विष्णु आकर कह रहे हैं देखो तुम्हारे भक्त, तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो मैं तुम्हारा घर आने वाला हूं, ऐसा कहा। तो खुदीराम ने कहा प्रभु आप तो सारा विश्व ब्रह्मांड का प्रभु हो और मैं एक बहुत ही छोटा सा बहुत गरीब ब्राह्मण हो,
यदि तुम मेरे घर में आओगे, तुमको देखभाल कैसे करोगे? कैसा करूंगा मैं? मेरे पास तो इतना साधन नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा करके आपत्ति जाता रहे। तब विष्णु भगवान ने कहा, कोई सोचो मत, जैसा तुम हमको जो दोगे उसको मैं लूंगा। यही भगवान की बहुत बड़ी बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में क्या भगवान कह रहे हैं कि मुझे देने के लिए तुमको 56 भोग देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम दे सकते हो दो, मैं भी लूंगा, लेकिन देने का जरूरत नहीं है। पत्रम, कोई एक पत्ता देने से भी हो जाएगा। क्या पत्ता दे सकते हो विष्णु को? कोई एक बच्चा बोल सकता है हमको? इतने बच्चे को चेहरा तो मैं देख रहा हूं, बताओ तो विष्णु के लिए बहुत पसंद कौन सी पत्ता है? जब बोलोगे तब अनम्यूट करना। तुलसी। तुलसी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तुलसी पत्ता, करेक्ट। किसने बताया ये? क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? अच्छा, तुलसी पत्ता। तो एक पत्ता, पत्रम, अच्छा ये पत्ता हमको तुलसी पत्ता नहीं मिला है, तो इधर उधर मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है, तो क्या करूंगा? तो ठीक है, कोई एक पुष्प दे दो। पुष्प मतलब फूल, कोई भी फूल दे सकते हो। देखो आजकल आयरलैंड में बहुत बड़ी संख्या में एक फूल मिलते हैं। वो क्या, कौन सा फूल जानते हो? उसका कहते हैं टुलिप। और हमारे यहाँ देखो टुलिप रखा है सामने, ठाकुर जी का नीचे टुलिप रखे हैं हम लोग। तो एक टुलिप फूल दे सकते हो, नहीं तो तुम्हारे घर के अंदर कोई भी फूल आएगा, कोई भी फूल। पत्रम पुष्पम, अच्छा तुम्हारे पास पुष्प भी नहीं है, पुष्प लेने के तुमको दूसरा जगह पर जाना पड़ेगा, दुकान से खरीदना पड़ेगा, उतना कष्ट कौन करेगा? ठीक है, तुम्हारे घर के पीछे कोई पेड़ है, उस पेड़ में कोई फल आया है, उस फल उठाकर दे दो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। कोई भी फल, नींबू होने से भी होगा। रामकृष्ण भगवान कहते थे ना, कोई उनके पास आने से वो कहते थे, बेटा तुम कभी खाली हाथ में साधु मिलने के लिए नहीं आना, कुछ लेकर आना चाहिए। तब भक्त लोग पूछते थे क्या लेकर आएंगे? कुछ नहीं होने से कम एक नींबू तो लेकर आ जाओ, तो सस्ता मिलता है कलकत्ता में, पहले तो नींबू लेकर आ जाओ, फल दे सकते। और कहते हैं यदि हमको पुष्प भी, पत्र भी नहीं मिला, पत्ता नहीं मिला, तो फूल नहीं मिला, फल भी नहीं मिला, तो मुझे क्या है, मुझे क्या देना है? तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम का मतलब है पानी। पानी तो सब जगह पर मिलना चाहिए, तुम्हारे घर में भी होगा पानी, सिर्फ एक गिलास में पानी देकर उसको दे देना, बस। उसमें मैं खुश हूं। कब खुश होता हूं? तुम इसको देने से ही मैं खुश होता हूं, ऐसी बात नहीं है। तुम 56 भोग रखकर देने से भी मैं खुश होता हूं, ऐसी बात नहीं है। कब मैं खुश होता हूं? उसी के लिए भी कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है उसको मैं ले लेता हूं, भक्ति के साथ। ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति बहुत ही विरल चीज है। हम सोचते हैं हम सभी लोग भक्त हैं, और हम लोग बोलते भी लोगों को, देखो मैं रामकृष्ण का भक्त हूं, मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षा लिया हूं तो मैं भक्त हूं, ऐसा लोगों से परिचय भी कराते हैं। लेकिन असल में भक्ति है क्या? हमारे अंदर भक्ति है? भक्ति होने से भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए हम भूल जाते हैं। कोई कोई भक्त लोग आकर बोलते हैं, महाराज जी इतना कष्ट से, बहुत कष्ट से, बहुत दुर्लभ जो दीक्षा पाना है, वो हमको दीक्षा मिल गई थी, लेकिन मंत्र ही भूल गया, मंत्र ही याद नहीं है, तो भगवान का नाम कैसा लूं? जो गुरु ने इतना प्रीतिपूर्वक तुमको मंत्र उपदेशित किया है, उस मंत्र ही भूल गया है। ऐसा भी लोग होते हैं। और भगवान के नाम कितने बार हम लेते हैं रोज? सोचना,
यदि भक्ति होगी तो भगवान का नाम संत सततम, कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे जो सततम चिंता करते हैं, सब समय चिंता करते हैं, उनकी जो देखभाल है मैं लेता हूं, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो भगवान जो चैतन्य देव आए थे उस समय भक्ति का अभाव था, लोगों को बीच में बाहर का दिखाने वाली भक्ति थी, लेकिन अंदर जो भक्ति करना है वो नहीं थी। तो क्या किया भगवान ने? भगवान इसलिए आते हैं ना, वो जो आते हैं, जो अभाव होता है समाज में, उस अभाव को दूर करने के लिए भगवान अवतार होता है। तो इसलिए भगवान ने अवतार लिया उस समय। उन्होंने क्या किया, सब जगह पर जहां भी जाते हैं तो लोगों को भगवान को नाम बोलने में बाध्य करते थे। तो देखो ये चैतन्य देव जैसा निमाई छोटी उम्र में कांदने शुरू किया, मतलब रोने शुरू कर दिया, रोते थे। तो इतने छोटे बच्चा तो इतना ऐसा रोता है, तो माता पिता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों रोता है। उसके लिए जो खेल कूद का जो चीजें हैं ये सब दिखाते हैं, लेकिन बच्चा तो रोना बंद नहीं करता है और रोते रोते बहुत चिल्लाता है, चिल्ला से रोता है। तो ये लोग डर गए थे, क्या कोई भूत टूत आ गया क्या, इसको कोई भूत पकड़ लिया क्या, ऐसा डर गए थे। तो लोगों को बुलाए थे। तो एक बूढ़ी माँ वहां आई थी, वो बहुत भक्ति थी उसकी, मतलब निमाई को वो साक्षात विष्णु मानती थी, विष्णु भगवान बोलती थी वो निमाई को। तो निमाई के पास आकर निमाई को अपने गोद में ले ली और बोलती है, देखो ये रोना जब कब बंद होगा, तुम लोग सोच रहे ना, ये बंद होगा जब तुम सभी लोग हरि नाम करोगे। तो वहां के जितने लोग थे वो लोग हरि नाम बोलने लगे, हरि 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस तरह के नाम बोलने लगे। जब भगवान का नाम बोलने लगे, निमाई रोना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद कर दिया। जैसा स्वामी जी का जीवन में हम देखते हैं, स्वामी जी क्या करते थे, बहुत दुष्ट थे। दुष्टू कहते हैं ना बांग्ला में, बहुत दुष्टू मतलब बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तो अनिल जी बहुत साल के बाद मैं हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए शरारत, तो कोई से किसी से हिंदी बात करने के लिए मौका नहीं है। शरारती हैं? शरारती, करेक्ट, शरारती करते हैं। तो विवेकानंद भी, नरेन भी ऐसा करता था। तो उस समय क्या करती थी माँ, उसको एक टैप का नीचे बैठाती थी और टैप खोलने के बाद नटखट बोलते हैं, हैं? शरारत नहीं नटखट बोलते हैं। हाँ नटखट बोलते हैं, करेक्ट, नटखट, यस नंदलाल, यस करेक्ट, नटखट करेक्ट। तो उस समय क्या करती थी माँ, उसको एक टैप के नीचे बैठाती थी और जब टैप खोल देती पानी उसका सिर में बैठ जाता है, बस वो शिव जी का जैसा हम लोग अभिषेक करते हैं इस तरह का नरेन का हुआ था। तब नरेन चुप हो जाता था। इसी तरह निमाई को भी ऐसा होता था। क्या होता था, वो रोने लगते थे और रोना बंद करने के लिए लोगों को हरि नाम करना पड़ा। अभी समझो तो कभी किसी समय तुमने हरि नाम करना बंद की, तुरंत ये निमाई रोने लगेगा। तो भगवान की लीला देखो, यही भगवान की लीला कहते हैं। जो छोटी बच्चा होते हुए भी सब लोगों को नाम जपाने का एक विधिवत उन्होंने शुरू किया है, छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र, उसी समय शुरू कर दिया। तो भगवान की जो लीला है, बाल्य लीला है, बहुत ही इतना बढ़िया है और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। उनका माँ ने सोचा एक दिन, देखो अपने बच्चे को बहुत कुछ आवरण, आवरण मतलब जो ऑर्नामेंट्स, व्हाट डू यू से फॉर ऑर्नामेंट्स? जेवर, जेवर महाराज, जेवर, जेवर, हाँ जेवर का दुकान तो चलाता अनिल बाबू, तो उसको मालूम है। तो बहुत कुछ जेवर का बना हुआ बहुत कुछ लेकर आए थे। लेकर माँ ने बच्चा को लगाकर उसका अंग पर लगाकर, अच्छा उसका जो ब्यूटी है, उसका जो सुंदरता है वो देख रही थी। और उस समय सब समय तो बच्चा के साथ नहीं रह सकते हो, तो तुम जाकर घर के अंदर काम भी है, तो खाना बनाना है, कुछ करना है, तो माँ अंदर चली गई। तो बच्चा क्या किया, धीरे धीरे बाहर आ गया, बाहर रास्ता पर आकर खड़ा हो गया। तो वहां देख रहा था, वहां बहुत कुछ
ये निमाई के पास बहुत कुछ पक्षियां आती थी, बहुत कुछ चिड़िया सब आकर बैठती थी निमाई के पास। निमाई जब भी जाता था बाहर, उसके पास चिड़िया आती थी, और बिल्ली और कुत्ता ये सब शांत रहता था निमाई के पास। असल में निमाई के साथ उसका कोई जान पहचान भी नहीं है, ये तो दूसरे स्ट्रीट का है। लेकिन जब निमाई बाहर आ जाता है तो वो सब जहां जहां है वहां से सब दौड़ कर आकर निमाई के पास आ जाकर बैठ जाता है, और निमाई भी उस सब प्राणियों के साथ खेलता था। तो इस तरह ही खेल रहा था एक दिन, तब दो चोर आए थे वहां, वो लोग जा रहे थे उस रास्ता पर। तो वो लोग देखा था ये छोटा बच्चा अकेला है, और कोई बड़े लोग तो नहीं है उसके पास, और अकेला है, तो इसके शरीर पर बहुत कुछ जेवर देख रहा है। अरे ये सब तो सोना है, तो इसे चोरी करके ले जाएंगे, ऐसा करके वो पास में आए थे। और वो लोग, तो माँ तो अंदर है, माँ तो कुछ चल पड़ी है वहां, तो माँ का जो पैर का जो आवाज सुनकर बच्चा को ही उठा दिया, उठाकर बच्चा को हाथ में लेकर दोनों भागे थे। तो भाग रहे थे, और कहाँ जाएंगे, बच्चा तो चुपचाप बैठा है उनका हाथ में, और वो लोग घूम रहे थे, यहाँ से एस्केप करना चाहिए ना, इसलिए वो लोग दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं फाइनली उस घर के सामने ही वापस आए। घर के सामने कोई नहीं है, बचा गया ऐसा सोच रहे थे। अच्छा अभी तो बच गया, कोई नहीं है तो बच्चा को यहाँ छोड़ देगा क्या? लेकिन जेवर के प्रति उनका जो मोह था वो तो कैसा छोड़ेगा, उसको तो निकालना पड़ेगा बच्चा के हाथों से। सो क्या किया, फिर उसको लेकर बाहर दौड़ गए, और जहां भी दौड़ते हैं पूरे शहर पर, पूरे गांव में दौड़े हैं इधर उधर, लेकिन उनका आंखों में सिर्फ एक ही रास्ता दिखता था, उस घर, फिर उस घर में आकर खड़े हो गए। ऐसा 3 बार हुआ था। तब बच्चा को छोड़कर, ये बच्चा तो कोई सामान्य बच्चा नहीं है, और इस बच्चा के शरीर से हम लोग ऐसा चोरी करने के लिए सोच रहे हैं, ये तो गलत बात है, ऐसा समझकर बच्चा को छोड़कर वो लोग चले गए। तो देखो ये एक और अद्भुत लीला है। तो बच्चे रहते समय, मतलब बच्चे बाल्यपन में जो चैतन्य देव की लीला है, ये सब स्मरण करने से ही हमारा बहुत पुण्य है, क्योंकि भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, उसको बताना चाहिए। यदि मंत्र दीक्षा लिया हो तब तो तुमको जप करना चाहिए, जप करना छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब बातें हम लोग को सोचना चाहिए। तो इसी के लिए भगवान आते हैं, और हर साल जो दोल पूर्णिमा का दिन पर हम लोग चैतन्य भगवान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोग को दिखाया था, देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए। और चैतन्य देव जब बड़े हो रहे थे, छोटी उम्र में उनकी पढ़ाई पर इतनी लगाव था, मतलब हम कंपेयर करने से रामकृष्ण भगवान को देखो, वो स्कूल जाना इनकार कर दिया, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन चैतन्य देव उस समय का 500 साल के पहले, तो उन्होंने क्या किया, वो स्कूल जाने में बहुत तेज था और पढ़ाई में बहुत तेज था। तो छोटी उम्र में 12 साल में एक टोल उन्होंने खोल दी। आश्चर्य की बात है, देखो 12 साल की बच्चा एक टोल खोलकर दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, उससे भी उम्र में ज्यादा है ऐसे बच्चे आते हैं उनको पढ़ाता है। कोई कोई ऐसा बच्चा है, हम जब क्लास 10 में पढ़ रहे थे, हमको याद है, तो क्लास 7 में एक बच्चा था, वो हमारे पास पड़ोसी था। तो उस पड़ोसी घर का लड़का वो मेरे पास आता था, हम लोग फ्रेंड्स थे, छोटा बच्चा है लेकिन फ्रेंड्स थे, तो आकर पढ़ता थे। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे मैथमेटिक्स में बहुत वीक था मैं, तो मैं उसको पूछता था। लेकिन 7th क्लास बच्चा 10th क्लास लड़का को समझाता है मैथमेटिक्स कैसा है, तो हम तो आश्चर्य होते थे। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो छोटी उम्र में ही उनके बहुत तेज विद्या है, क्योंकि विद्याम देही सरस्वती, विद्याम देही बोलते हैं ना सरस्वती को, हे माते सरस्वती हमको विद्या दो। ऐसा प्रार्थना करने से सरस्वती की कृपा होती है। ऐसे ही इस निमाई के ऊपर सरस्वती की विशेष कृपा थी। और विशेष कृपा कैसी थी, वो 16 साल जब हुआ था तो उनका टोल
बहुत एस्टैब्लिश्ड टोल बन गया। टोल मतलब ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल कहते हैं। उस दिन गवर्नमेंट का स्कूल तो नहीं था, गवर्नमेंट ने स्कूल नहीं चलाते थे, और इसलिए तो प्राइवेटली जो पंडित थे वो लोग एक टोल बनाकर पढ़ाते थे। तो उस टोल में बहुत लोग आकर संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत का व्याकरण और भी जो कुछ शास्त्र है वो सब पढ़ते थे, और उसमें तेज था निमाई, तो निमाई पढ़ाते थे। लेकिन निमाई के साथ एक बंधु था, वो फ्रेंड क्या करता था, उसका नाम था रघुनाथ। ये रघुनाथ एक किताब लिख रहा था। ये रघुनाथ लेकिन इससे उम्र में 8 साल बड़ा है निमाई से, और निमाई के पहले ही वो पंडित बन गया था। निमाई तो बाद में पंडित बना, लेकिन वो पंडित बनने के बाद निमाई ने रघुनाथ ने सोचा मैं एक व्याकरण के ऊपर किताब लिखूंगा, और उस किताब सर्वश्रेष्ठ किताब होना चाहिए व्याकरण में, उससे ज्यादा अच्छा कोई किताब नहीं आना चाहिए। ऐसा सामने रखकर वो ये किताब, कम से कम किताब लिखना शेष ही हो गया था, खत्म होने वाला था उस समय, और 2-3 पन्ना है बस लिखने के लिए। उसी समय एक दिन रघुनाथ और निमाई दोनों एक बोट में मुलाकात होगी। तो गंगा नदी में बोट चल रहा है, नाव में बैठे हैं दोनों। तो निमाई को मालूम है रघुनाथ बहुत बड़ा पंडित है और वो किताब लिख रहे हैं ये भी मालूम है। तो निमाई जाकर उनको प्रणाम किया, क्योंकि उनसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है ना, इसलिए प्रणाम किया। प्रणाम करके बोल रहे हैं आचार्य जी आपके नाम तो बहुत सुना हूं मैं, और आप एक किताब लिख रहे हैं ऐसा सुना, ऐसा चेष्टा कर रहे हैं। मैंने कहा देखो निमाई, मैं तो एक किताब लिख रहा हूं, सबसे श्रेष्ठ व्याकरण के ऊपर किताब बनेगा वो, लेकिन उस किताब कैसी है कैसी होगी ये तो मुझे अभी भी पता नहीं। मैं तो लिख रहा हूं लेकिन लोगों को अभी दिखाया नहीं। लेकिन इसके बीच आज ही सुबह सुबह हमने सुना है कि दूसरे पंडित लोग हमसे बोल रहे थे कि निमाई बोलकर एक लड़का है नवद्वीप में, वो एक किताब लिखा है व्याकरण पर, इतना अच्छा है, ऐसा बता दिए। तो क्या तुम भी लिख रहे हो क्या कोई किताब? तो उन्होंने कहा, निमाई ने कहा हाँ जी मैं भी चेष्टा कर रहा हूँ एक किताब लिखने की। तो मेरे पास एक किताब का जो परिणाम है जो लिखा है वो तो रखा हूँ, आप देखना चाहेंगे करके उसको उठाकर उनको दिखा दिया। बोट नाव तो चल रहा है, तो ये बैठ कर वो बोट में ही रघुनाथ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनको मालूम हुआ उनकी जो लिखी हुई जो किताब है वो कोई अंश में निमाई की किताब का साथ सदृश नहीं है। जिस किताब के बारे में उन्होंने सोचा सर्वश्रेष्ठ बनेगी, उस किताब निमाई के किताब के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको मालूम हुआ। जब मालूम हुआ था रोने लगे। जब पंडित जी रोते हैं और बड़े उम्र का है और इससे रोते हैं तो ये रोते तो निमाई को कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा साहब आप तो हमारे किताब पढ़े हैं और रो रहे हैं, क्यों क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखो निमाई तुम हमसे छोटे हो उम्र में, लेकिन ज्ञान हमसे बहुत बड़ा रखते हो। तुम जो लिखी है किताब, ये बाहर आ जाने से मेरी किताब को कोई पूछेगा भी नहीं। तो निमाई ने कहा इसी के लिए आप रो रहे हैं? मेरी किताब बाहर आने से ही आपकी किताब के बारे में कोई पूछेगा नहीं। यदि मेरी किताब बाहर ही नहीं आएगी तब तो कोई समस्या नहीं है ना। तो रघुनाथ आश्चर्य होकर ताक रहे थे इस लड़का को, ये क्या बोलना चाहता है। तो उसके सामने ही अपनी जो लिखी हुई किताब को नदी में फेंक दिया, बस। क्योंकि इस तरह का नाम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भगवान का दर्शन, और इस तरह का नाम कमाना मुझे जरूरत नहीं है। रघुनाथ की किताब ही रहने दो। अभी भी बंगला में रघुनाथ की किताब ही है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखो चैतन्य देव का किताब इससे बड़ी थी, लेकिन उन्होंने
उसको त्याग कर दिया। ये जो त्याग करना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या हमारा हमारा हम जो ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे, क्या हम लोग नदी में ऐसा फेंक देंगे? नहीं। तुम भी पब्लिश करो, मैं भी पब्लिश करूंगा, कंपटीशन में हम लोग जाएंगे। लेकिन निमाई ऐसा नहीं था। वो उनके लिए, उनकी संतोष के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी किताब को विसर्जन कर दी। ये त्याग है, वो निमाई का जो जन्म से ही था, दूसरों के लिए त्याग करना। यही त्याग उन्होंने, जब शादी भी हो गई थी उनकी, और पहले शादी तो महिला मर गई थी, तो इसलिए दूसरी शादी भी की। विष्णुप्रिया नाम था, पहले महिला का नाम था कृष्णप्रिया। तो विष्णुप्रिया आने के बाद बहुत अच्छा सा संसार चल रहा था। लेकिन जब अपने पिताजी मर गए थे, जब गए थे गया में जाकर, इस गया में ही ठाकुर जी का, रामकृष्ण देव का पिताजी भी गए थे, उस गया में जाकर श्राद्ध वगैरह किए थे। श्राद्ध करने के बाद वहां एक साधु जी से मुलाकात हुई। वो साधु जी ने इनको सन्यास भी दिया। तो सन्यास लेकर आ गए और घर में अपने माताजी और वाइफ को बताया थे, देखियो मैं सन्यास ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहकर ही मेरा काम नहीं है, मेरा बहुत बड़ा काम बाकी है करने के लिए। मैं सारा भारत में जाना चाहता हूँ, जाकर भगवान के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको मैं सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आदेश दो। ऐसा करके माँ से बहुत मांगा करके घर से निकल पड़े। जैसा बुद्ध भगवान एक दिन निकल पड़े, ऐसा इन्होंने निकल पड़े। निकल कर कहाँ गए थे? 26 साल उम्र में वो घर से निकल गए थे और गए थे, और 12 साल घूम रहे थे सारा भारत। दक्षिण भारत में गए थे। मैं एक बार विशाखापट्टनम गया था। विशाखापट्टनम एक हार्बर टाउन है, तो बहुत सुंदर टाउन है। वहाँ हमारा मिशन आश्रम भी है, तो उस आश्रम में रहने के लिए 1 हफ्ता रहने के लिए मैं गया था। तो हमको वहां से पास में एक छोटा सा टाउन है राजमंड्री, राजमहेंद्रपुरम ऐसा नाम है उसका अभी, क्योंकि भारत में आप जानते हैं बहुत नाम सब बदला जाता है, तो अपना पुराना नाम आ जाता है। तो इस तरह का तो नाम राजमंड्री था इंग्लिश काल में, तो अभी उसका राजमहेंद्रपुरम ऐसा अच्छा बना दिया था। तो वहां गया था। वहां के स्वामी लोग हमको एक गौड़ीय मठ में ले गए थे। गौड़ीय मठ है, वैष्णव धर्म है, जो गौड़ीय मठ संप्रदाय चैतन्य देव ने शुरू की थी। चैतन्य देव का जो संप्रदाय को कहते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो उस संप्रदाय का मठ था। तो जहाँ चैतन्य देव रहते हैं उनको तो बहुत मानते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन में साधु लोग चैतन्य भगवान को बहुत मानते हैं, और ठाकुर जी भी बहुत मानते थे। और भैरवी ब्राह्मणी जो ठाकुर जी का तंत्र साधना सिखाई थी, वो आकर बताती थी, वही पहले बताई थी कि ये जो रामकृष्ण है ये साधारण आदमी नहीं है, ये चैतन्य देव ही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, ऐसा करके उन्होंने प्रकट की। तो चैतन्य देव के ऊपर बहुत लगाव था रामकृष्ण देव को, और चैतन्य देव जैसा भगवान नाम लेकर नाचते थे, ऐसा रामकृष्ण भगवान भी बहुत नाचे। जहां भी भक्त लोग आ जाते हैं सबके साथ बैठकर बहुत नाचते थे। तो भगवान का नाम उसको प्रचार करना चाहिए, ऐसा करके उस राजमंड्री पर, उस जगह पर एक छोटा सा एक पर्णकुटी था। वहां चैतन्य देव 1 महीना रहे थे और वहां के लोगों को भक्ति प्रवाह दिए थे। उस घर में उस पर्णकुटी को आज बदलाकर एक चैतन्य देव का गौड़ीय मठ का एक ब्रांच बन गया था। तो मैं वहां गया था, चैतन्य देव पधारे और उस जगह पर गया था। तो इस तरह की बहुत जगह पर चैतन्य देव घूमे, भारत में घूमकर सब जगह पर हरि नाम संकीर्तन उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने एक महामंत्र कहते हैं, उस महामंत्र को उन्होंने चालू किया था। ये चैतन्य भगवान ने प्रथम चालू किया था। जो मंत्र पहले से ही पुराण में भी कहा गया है, लेकिन ऐसा मंत्र के रूप में कहा नहीं गया। एक ग्लोरी कहते हैं, ग्लोरी बताने के लिए ये कहना है। राम जी का ग्लोरी क्या है? तो हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कृष्ण भगवान के बारे में हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन ये तो ग्लोरी के बारे में, एक किसी को आप अच्छा से बोलना चाहते हैं तो उस भगवान के बारे में कहेंगे, लेकिन इसको महामंत्र के रूप में बनाया था चैतन्य भगवान ने। उनका मंत्र, ये जो महामंत्र है, ये सब जगह पर उन्होंने लोगों को बोला, बोलो हरि नाम, बोलो बोलो हरि हरि बोल, ऐसा उन्होंने कहकर लोग जहां जाते थे लोगों को बोलते थे, पहले हरि बोल करो, हरि का नाम ले लो, मेरा नाम ही मेरा भक्त लोग स्मरण करते हैं, मेरा नाम ही भक्त लोग आपस में मुलाकात होने से बातचीत करते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। अपने भक्त लोग क्या करते हैं? अपने भक्त लोग एक साथ मिलने से मेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम ही प्रचार करते हैं, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। उसी में आनंद है। उस आनंद को देने के लिए ही भगवान नाम लेने से जो आनंद मिलेगा, उसका उसका बहुत बड़ा अर्थ है। इसलिए उसको सिखाने के लिए ही भगवान चैतन्य के रूप में आए थे। बाद में वही भगवान जो राम और जो कृष्ण के रूप में आए थे, वही रामकृष्ण रूप में आए थे। तो हम सभी लोग रामकृष्ण भगवान के भक्त हैं इस काल में। अभी तो कली काल चल रहा है, 5000 साल हो गया, तो हम लोग कली काल में रामकृष्ण भगवान का नाम लेते हैं। कैसा सौभाग्य, देखो हम सबको रामकृष्ण का नाम लेना हो गया और नाम हमारे पास आ गया। तो इस तरह का एक अपूर्व नाम जो मिला है, तो इस नाम को हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। नाम को सदा सर्वकाल हम लोग को उच्चारण करना चाहिए मन ही मन, तब हमारा जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। सब जो कुछ तुम करना चाहते हो उसको तुम पा सकते हो, और जो कुछ असुविधा है संसार में वो सब दूर होगा। इसलिए भगवान नाम का बहुत ही महत्व है। तो अब हम जैसे ही जूम में आते हैं आजकल, जहां भी मैं क्लास करता हूं, तो सिर्फ मैं लेक्चर देकर अंतर्धान नहीं होता हूं। मैं क्या करता हूं, तुम लोग से भी कुछ सुनना चाहते हैं। तो तुम लोग से जब भी बात करोगे, तुम लोग अनम्यूट करके तुम लोग बात करना है। बोलने से तब मुझे कान में सुना पड़ेगी। तो तुम लोग बात कर सकते, तुम लोग भी बोल सकते हो। अपना ये कोई कमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, या कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो, या कुछ बोलना चाहते हो अपना अपनी मन की बात तो बोल सकते हो।